Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the transcription unit and the gene. In our last video, we have discussed the transcription introduction, also the promoter site, the terminator site and the structural gene. And today we will understand what is the exact definition of gene, because the gene definition is different in different cases. So firstly, to understand this transcription unit and the gene, just revise the central dogma. So central dogma, what is central dogma? There is the formation of the DNA from DNA, then RNA from the DNA and RNA to protein, and it was given by Crick. So if I am taking this structure, so that structure is DNA, and the very small part or the very small segment of this DNA, that is known as gene. Okay, so this gene that code for a particular type of protein, and the protein that determine the body design. So let us understand with the help of central dogma. If there is the formation of another DNA from this DNA, then there is the formation of DNA from DNA. Then from this DNA there is the formation of RNA, and from the RNA protein is formed. So formation of RNA from DNA, that is transcription. In simple language, we can take the example. Suppose here it is the gene, and that gene is transcribed into RNA, and this gene have some sequence. Suppose this gene have AT GC AT, that sequence is present in this gene. Now this gene change into transcription takes place and it change into RNA. Now what will be the sequence? A combined with T, but here at the place of thymine, uracil is present in case of RNA. So the sequence will be A, at the place of A means combine, at the place of A what is there? The same A, but at the place of thymine uracil is present, then G C A U. In simple case हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक कोड वर्ड लैंग्वेज है डीएनए के अंदर, ये लैंग्वेज चेंज हुई दूसरी लैंग्वेज में, मीन्स ट्रांसक्राइब हुई, जिसको हम बोल सकते हैं AUGC, और ये फर्दर लैंग्वेज चेंज हुई किस में? सपोज वैलिन, हिस्टिडीन, थ्रियोनेन, ग्लाइसिन, लाइसिन. What are these? These are the amino acids, and these amino acids join to form a polypeptide chain, and the proteins are made up of these polypeptide chain, and that is known as translation. सिंपल मीनिंग आप बोल सकते हो, जैसे हम बोलते हैं कि हिंदी में कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं कि इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में. तो इसी तरह से जो ये आरएनए बना, इसके अंदर जो सीक्वेंस थी, इस सीक्वेंस को हमने दूसरी भाषा में चेंज किया, और वो दूसरी भाषा क्या थी? प्रोटीन की. एंड दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो acids.
So I think you understand this central dogma now in the form of transcription unit and gene. So now what is the gene? हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें डीएनए की, सो द लेंथ ऑफ डीएनए इज़ 2.2 मीटर, जो हमने पहले भी फाइंड आउट किया है दैट लेंथ। और इस डीएनए के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे जीन होते हैं, 16,000 से लेके 20,000 तक जीन होते हैं। एंड ऑल द जीन्स आर नॉट असेंशियल फॉर मेकिंग द प्रोटीन। सारे ही जीन कोड भी नहीं करते और सारे जीन्स जो हैं हमारी बॉडी में एक ही टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर हम सारे जीन्स के ही प्रोटीन बना दें तो ये बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है और वो हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं होते। सो दीज प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स हैं वो छोटे प्रोटीन भी हो सकते हैं, बड़े प्रोटीन भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड ऑन द सेगमेंट ऑफ द जीन। सो जो जीन है वो 10 to 12 बेस पेयर भी उसमें हो सकते हैं, 60 to 65 या 100 बेस पेयर भी एक जीन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दैट जीन then transcribe into RNA and that RNA then translate into protein. So transcription unit जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो एक डीएनए के जो सेगमेंट होंगे, 2 सेगमेंट होंगे, उनमें जो स्टार्टिंग में रीजन होगा दैट इज़ द प्रमोटर साइट एंड इन द लास्ट द टर्मिनेटर साइट, terminator, promoter, and in between there are the structural gene, and these structural gene transcribe into RNA and that RNA change into protein. Now we have to understand one concept also, that is polycistronic and monocistronic unit. और polycistronic और monocistronic structural gene. Now what is a cistron? There is the no need to confusion. आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि what is cistron. Cistron भी क्या होता है, एक जीन ही होता है, बट फाइनली जो जीन एक प्रोटीन में चेंज हो जाए उसको हम सिस्ट्रॉन बोलेंगे। सो अ सिस्ट्रॉन दैट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो क्या होगा, दैट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब इनटू प्रोटीन, सो दैट इज़ नोन एज सिस्ट्रॉन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक टर्म समझनी है आपको, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये दोनों टर्म आप अच्छे से, जो टॉपिक हमारा लैक ऑफ प्रोन है उसमें भी अच्छे से समझोगे, बट यहाँ पर भी मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनो एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि ये एक स्ट्रक्चरल जीन है एंड दैट स्ट्रक्चरल जीन चेंज इनटू आरएनए एंड देन दिस आरएनए चेंज इनटू प्रोटीन। तो जब किसी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर only one structural gene is present, then it is known as monocistronic. Mono means single. तो एक सेगमेंट होगा डीएनए का और डीएनए के सेगमेंट को हम जीन ही बोलते हैं। और अगर वो सेगमेंट डीएनए का कोई पॉलीपेप्टाइड बना ले, मतलब प्रोटीन बना ले, फाइनल अपना एक्सप्रेशन दे, तो उसको हम बोल देंगे सिस्ट्रॉन। और अगर एक ही स्ट्रक्चरल जीन हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और जो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है, ये होती है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होगा एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर आर द पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन। मतलब जो बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे उनको रेगुलेट करने के लिए एक ही
एक ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी या एक ही रेगुलेटरी जीन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो जब बहुत सारे मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज नोन एज पॉलीसिस्ट्रोनिक, वहाँ पर आप उसमें ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में लैक ऑपरॉन में आप पढ़ोगे ApoZYA। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जिनको एक ही जो रेगुलेटरी जीन है वो कंट्रोल करता है। तो इफ़ मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन आर प्रेजेंट, अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन हो तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। और पॉलीसिस्ट्रोनिक को आप कैसे याद रखोगे? पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में किस टाइप के स्ट्रक्चरल जीन होंगे? पॉलीसिस्ट्रोनिक। और यूकैरियोट्स में कैसे होंगे? मोनोसिस्ट्रोनिक। वन थिंग ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट इज सिंपल एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। In case of prokaryotes, that DNA change into RNA, that RNA change into protein. But in case of eukaryotes transcription, there are the some non-coding sequence present in the RNA. जब DNA से RNA बनेगा, सपोज यहाँ पे हम इतना ये स्ट्रक्चर ले रहे हैं, सो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होगा? सपोज हम ये टोटल सेगमेंट ले लेते हैं एक आरएनए का, तो उस आरएनए में ये मैंने जो ब्लैक कर दिया, इधर भी मैंने ब्लैक किया, फिर बीच में से छोड़ दिया, फिर मैंने ब्लैक किया। तो जीन के अंदर कुछ कोडिंग सीक्वेंस होती हैं और कुछ नॉन कोडिंग। जैसे ये सीक्वेंस हो गई नॉन कोडिंग सीक्वेंस और ये हो गई कोडिंग सीक्वेंस। तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं उनको हम बोलेंगे इंट्रॉन, और जो कोडिंग सीक्वेंस हैं उनको हम बोलेंगे एक्सॉन। तो जब इन केस ऑफ यूकैरियोट्स के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए की फर्दर प्रोसेसिंग होती है जिससे उसके अंदर से जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है वो रिमूव हो जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज स्प्लाइसिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। तो ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जिनको हम बोलेंगे इंट्रॉन। हाउ यू कैन लर्न? इंट्रॉन मीन्स जो इंटरफेयर करते हैं, तो ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, तो ये इसमें से निकल जाते हैं। तो प्रोसेसिंग होती है आरएनए की, और फाइनल आरएनए जो बनता है उसके अंदर इंट्रॉन निकल जाते हैं, ओनली एक्सॉन्स आर लेफ्ट, एंड दीज एक्सॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंस. So I think you understood what is the exact definition of a gene. So the gene that is the segment of the DNA and that transcribe into a protein. And what is cistron? It is the segment of the DNA which finally change into a polypeptide, जो एक polypeptide बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा. अब उसके बाद हमने बात करनी है कि पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होता है. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज़ द प्रोमोटर साइट. प्रोमोटर साइट कौन सी होगी? जिस साइट पे आके जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो साइट पे आके बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी. बीच में वो सेगमेंट है डीएनए का जिसको ट्रांसक्राइब होना है, जिसको चेंज होना है आरएनए में, और फिर आरएनए फाइनली ट्रांसलेशन, आरएनए के अंदर ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगा उससे. तो प्रमोटर साइट हो गई और एक हमारी हो गई टर्मिनेटर साइट, और ये स्ट्रक्चरल जीन.
अगर ये स्ट्रक्चरल जीन एक ही होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक, और अगर ये स्ट्रक्चरल जीन एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक किस में होगा? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के अंदर जब हम लैक ऑफ पढ़ेंगे तो आप इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से समझोगे। देन द मोनोसिस्ट्रॉनिक, दैट इज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो फाइनली आप ये समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड व्हाट इज़ द मोनोसिस्ट्रॉनिक and the transcription unit and the gene. So these are the basics to understand the transcription in case of prokaryotes as well as in case of eukaryotes. So after that we will start firstly the transcription in case of prokaryotes, then in case of eukaryotes. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.